Hello students, so a very welcome to all of you. So today we are going to move on to the next part of the topic, that is nothing but polar coordinate system. As you know, we are doing trigonometry 1, which is also known as trigonometric functions. So please put up this heading, polar coordinate system. Now first I'll explain you exactly polar coordinates means what. Now students, in lower standards you have learned Cartesian coordinate system. Now जैसे ही Cartesian coordinate system होता है, there is one more system that is called as nothing but the polar coordinate system. So let us understand what exactly polar coordinate system is. Okay, so what you do is first draw the coordinate axis. Please start drawing along with me. As you all know, this is our x-axis, x, o, x dash. This is our y-axis, y, o, y dash. Now, we have seen in the earlier part of the topic, p, x, comma, y जो point है, that point p, x, comma, y can lie in any one of the quadrant. Now, let us take point p, x, comma, y in the first quadrant. Now I join the 2 points O and P. So please join these 2 points. Then I draw a perpendicular from point P, which meets x-axis at point M. Now, as we all know that this distance OM is nothing but x, distance PM, yeah, point P ka distance from M is nothing but y, or you can say this length PM is y, and this length OP is nothing but denoted by the notation R. This is length R. Now, this line OP makes an angle theta with positive direction of x-axis. Okay, so ये R है और ये theta angle है. Now from the geometry of this figure, write down, आगे आप लिखो, from the triangle OPM. Now we can apply Pythagoras theorem. So in triangle OPM, you can observe that we get what? X square plus y square is nothing but equal to R square. OM square plus PM square is nothing but equal to OP square. So therefore, from here, if I want to find out the value of R, so what will be value of R, students? The value of R will be nothing but under root of x square plus y square. Now, from this triangle OPM, we have already defined sin theta and cos theta. Recollect the earlier lectures which we have done in trigonometry 1. So how do we define sin theta? So from the triangle, sin theta is defined as opposite upon hypotenuse. So sin theta is defined as y by r, and cos theta is defined as x by r. So therefore, from here, what is value of y? Cross multiply करेंगे तो y will be nothing but equal to r sin theta, and from here x is nothing but equal to r cos theta होता है. ठीक है? Now in this, as we all know, what is r, students? So r is the distance of point P from the origin, and theta is the angle made by OP with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. ये जो point P x, y है, ये किसी भी quadrant में हो सकता है. Now, as we all know, जब भी हम P x, y लिखते हैं, तो x and y they are called as Cartesian coordinates. Similarly, we have polar coordinates. So this point P also can be denoted by r, theta. तो जैसे हम p x, y डिनोट करते हैं,
वैसे हम पॉइंट P को r कॉमा थीटा से डिनोट कर सकते हैं. So x and y they are called as the Cartesian coordinates and r and theta they are called as the polar coordinates. तो ये polar coordinate system है जिसमें जो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है ना that is represented with the help of r and theta. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है that is represented by x, y. चलो प्लीज नोट डाउन. Now we have to solve problems dependent on this. तो चलो लिख के देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए. राइट डाउन. दिस इज बीइंग रिटर्न. अच्छा, अभी यहाँ से हमें थीटा भी फाइंड करना है, तो थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट होते हैं? पी आर कॉमा थीटा से ना. तो आर का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो आर विल बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्टूडेंट्स, नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट थीटा? तो राइट डाउन फ्रॉम हियर. ऐसे लिखो, देयरफॉर tan theta. Now from this triangle, tan theta is nothing but y upon x, and therefore theta will be written as tan inverse of y by x. तो थीटा हम ऐसा फाइंड करेंगे, tan inverse of y by x. इनवर्स फंक्शन होता है that we are going to learn in 12th standard, but अभी फिलहाल आप ये याद रख लो, थीटा is equal to tan inverse of y by x होता है. बट जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ tan थीटा. हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल थीटा कैसे फाइंड करना है. तो प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल मूव अहेड. अब आपके रेफरेंस के लिए ये भी लिख लो x, y. आई विल राइट डाउन ओवर हियर. ठीक है, x, y, it is called as Cartesian coordinates. Cartesian coordinates. And r theta, they are called as polar coordinates. So students, there is a sure relation between Cartesian coordinates and the polar coordinates. So what is that relation? X is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. If you recollect, मैंने आपको लिख के भी दिया है स्टार्टिंग में, when we have started with trigonometry, that point P, जो point P है x, y, that can be written as x will be written as r cos theta and y will be written as r sin theta. And also write down this and put a box over this also. So what is x? X is r cos theta and y is r sin theta. So this is the relation between the Cartesian coordinates and the polar coordinates. So we have to do problems which are dependent on this. मतलब कैसे रहेगा? x और y का वैल्यू दिया है. If the Cartesian coordinates are given, we can find out the polar coordinates. x, y दिया है, r theta find कर सकते हैं. Vice versa वे polar coordinates given, मतलब अगर r theta का वैल्यू दिया है तो x, y का वैल्यू मिलेगा. This is what we have to do in problem solving. But उसके लिए ये relation important है. x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. एंड थीटा फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू y by x फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. नाउ दिस कंसेप्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 12th स्टैंडर्ड. यही सेम चल के हमें आगे 12th स्टैंडर्ड में भी लगने वाला है. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली. चलो प्लीज नोट डाउन दिस. Now students, these 4 points also you have to note down. Now when we are solving the problems dependent on the polar coordinate system, we will need some formulas to find out theta. So please note down this. If the point lies in the first quadrant, we are going to get theta directly. देखो अभी हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं tan theta is equal to y by x. तो अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा डायरेक्टली मिलेगा.
if the point lies in the second quadrant, तो tan of pi minus theta is equal to minus tan theta. कुछ allied angle formulas है that we have to learn later on, but we have to use them first. तो कुछ allied angle formulas आपको याद रखने हैं थीटा फाइंड करने के लिए. तो अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा फॉर्मूला यूज करना है. पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव tan थीटा. और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा फॉर्मूला यूज करना है. नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हम थीटा फाइंड करते हैं ना, this theta angle is measured in anti-clockwise direction and that theta lies between 0 to 360 है ना. जो थीटा होता है, नोट डाउन फॉर योर रेफरेंस. अभी देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है नहीं स्टूडेंट्स, so I'll just write down that part over here, but before that just write down till here. So I hope student you must have written this. अब मैं ये थोड़ा जरा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ. ये जो y डैश लिखा है, I'll just write down over here. ये y डैश यहाँ पे लिखता हूँ. Write down one note for your reference. I'll just put a box over here. ऐसा बॉक्स क्रिएट करता हूँ. Write down. एक कंडीशन है थीटा measured in anti-clockwise. Theta measured anti-clockwise डायरेक्शन थीटा. और जो थीटा का वैल्यू है दैट विल बी बिटवीन 0 to 2 पाई. तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई. मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी हो सकता है, पर जो थीटा का वैल्यू है वो 2 पाई से छोटा होना चाहिए. 2 पाई मींस 360 डिग्री. so it should lie between 0 to 360 थीटा का वैल्यू. तो प्लीज नोट डाउन ये कंडीशन है. तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. मींस यू रिमेंबर वी हैव टू फाइंड आउट आर थीटा एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. so we have to find out x and y and we have to use the relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So note down this, then we'll move on to the problems dependent on them. Okay students, so exercise 2.2, let us do question number 12. देखो क्या दिया है. Find the Cartesian coordinates of the points whose polar coordinates are. Means polar coordinates दिए हैं और हमें Cartesian coordinates find करने हैं. Polar coordinates दिए means it is r theta given and xy हमें find करना है. ठीक है, चलो write down solution for example number 1. फॉर्मेट वही रहेगा. ठीक है, चलो तो क्या दिया है. गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसा लिखो गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पी आर कॉमा थीटा. पोलर कोऑर्डिनेट्स किससे डिनोट करते हैं हम, आर थीटा से. दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या दिए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट एग्जांपल में 3,90 डिग्री. जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हियर आर का वैल्यू इज 3 एंड थीटा इज 90 डिग्री. तो लिखिए ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट डाउन हियर आर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. आर थीटा का वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. बट व्हाट डू वी वांट, वी वांट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. मींस हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो रिलेशन यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट इज x गिवन बाय x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. तो राइट डाउन बाय यूजिंग, ऐसा लिखो वी नो दैट, उसका शॉर्ट फॉर्म है वी नो दैट का.
x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta होता है. Now we have to substitute the value of r and theta over here. तो लिखो क्या मिलेगा, therefore x is equal to r का value with 3 into cos theta, so it is cos 90 degrees हो जाएगा. And over here what will obtain students, so y will be nothing but equal to 3 into sin 90 degrees. अभी हमें मालूम है कि by using the trigonometric table we have already done it. cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0 and sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1. So write down therefore x is further equal to 3 into 0 and y is equal to 3 into 1. तो x का वैल्यू है nothing but 0 and y का वैल्यू is nothing but 3. चलो राइट डाउन फाइनल आंसर लिखो. द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ऐसा लिखो फाइनल आंसर, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of the Cartesian coordinates are, लिखो 0,3. That's it. हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. हमें क्या चाहिए था, वी वांटेड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वी हैव ऑब्टेन्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स वर गिवन, वी हैव फाउंड आउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. वैसे सिमिलरली हमें सेकेंड एग्जाम्पल करना है. ठीक है, फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, देन विल मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेकंड वाला 1,180 डिग्री. तो फॉर्मेट वही है, ओनली r and theta is going to change and obviously value changes. See they are interlinked. r theta चेंज हो जाएगा तो xy चेंज होगा, xy चेंज होगा तो r theta चेंज हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, दे हैव अ रिलेशन. x का r theta के साथ रिलेशन है और y का भी r theta के साथ रिलेशन है, तो इट हैज टू चेंज. ठीक है, तो चलो अभी पी आर कॉमा थीटा सेकेंड एग्जांपल में दैट पॉइंट पी इज गिवन एज 1,180 डिग्री, मींस आर का वैल्यू 1 है और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है. तो सब्स्टिट्यूट, वी नो द रिलेशन, तो आर का वैल्यू तो 1 into cos 180 degrees and y, so that will be nothing but r into sine of 180 degrees. Now see the trigonometric table, this one remaining same, cos 180 means cos pi. तो cos pi का वैल्यू होता है -1. ठीक है, r 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम. ठीक है ना, तो 1 into sin 180, sin 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0. तो x is nothing but -1 and y is nothing but 0 now. तो हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. तो फाइनल आंसर लिखो, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, 0. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट बिगिंस एंड एंड्स. आर थीटा चेंज हो जाएगा, एक्स वाई चेंज हो जाएगा. प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर. अभी बाद में हमें एग्जैक्टली इसका उल्टा करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस, मींस इफ एक्स वाई विल बी गिवन टू अस, वी विल हैव टू फाइंड आउट आर थीटा. मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, बट बिफोर दैट यू राइट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एज आई सेड, you have to find out the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are given. मतलब x और y के वैल्यूज दिए हैं, r थीटा हमें फाइंड करना होगा. So let us begin with the solution of
एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लिखिए। क्या दिया है? गिवन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट डाउन, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किससे डिनोट होता है? p x, y से, राइट डाउन, p x, y इज इक्विवेलेंट टू, सेकेंड एग्जाम्पल है 1, √3। सो अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं मैं। हियर x इज नथिंग बट इक्वल टू 1 एंड y इज नथिंग बट इक्वल टू √3। x, y, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है। अभी सबसे पहले हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम पहले r फाइंड करेंगे, फिर थीटा फाइंड करेंगे। अभी r फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? तो r इज इक्वल टू √x² + y²। So write down, we know that r is equal to √x² + y²। सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर will become 3। So obviously students, this is nothing but √4 and √4 is nothing but equal to 2. Now r is a distance, so distance is to be always taken positive, तो सिर्फ r is equal to 2 आएगा। तो चलो r मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है थीटा। अब थीटा के लिए हम क्या करेंगे? दे हैव अ रिलेशन, x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा। तो हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y by x। Do not concentrate on this theta is equal to tan inverse, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से थीटा बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हैं, बट ऑल्सो वी हैव टू यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। ये जो अलाइड एंगल, जिसको हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं, ये अलाइड एंगल फॉर्मूलेज भी हमें यूज करने हैं। तो चलो राइट डाउन, नाउ ऐसा लिखो, नाउ tan थीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला y by x, ये याद रखना है आपको, ठीक है। Therefore from here what do we obtain? Tan theta is equal to y upon x, तो √3 upon 1। चलो आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल है तो √3 upon 1 which is nothing but √3। Therefore tan theta remaining same। Now refer the trigonometric table। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि tan √3 कौन से एंगल पे होता है, ठीक है। तो tan √3 कौन से एंगल पे होता है? देखो, कैन एनीवन टेल मी? चेक। तो इट इज tan ऑफ 60 डिग्रीज। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर व्हेन वी विल कंपेयर बोथ द साइड्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज है, तो देयरफॉर व्हाट शुड बी थीटा स्टूडेंट्स? तो थीटा शुड बी 60 डिग्रीज। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो थीटा मिला है दैट इज राइट और रॉन्ग? तो ऑब्वियसली यू सी ओवर हियर देयर आर टू वेज। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्रीज का वैल्यू √3 होता है, इसलिए सही जवाब है। एट द सेम टाइम दिस पॉइंट P 1, √3, अभी जो पॉइंट P है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, मींस पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और देखो ये जो थीटा है दिस इज आल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप लिख लो यहाँ पे, एक्चुअली वी कुड हैव रिटन हियर इटसेल्फ, P लाइज इन, यहीं पे लिख दो आप, P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्टार्टिंग में लिख देना, ठीक है। तो हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। वी हैव गॉट थीटा, बट वी हैव टू एंड द प्रॉब्लम। r थीटा लिखना है ना, पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है। अच्छा, समटाइम्स textbook also writes this in form of radian also, so you know 60 degrees can be written as pi/3 radians also, any one of them can be used। जनरली हम रेडियंस के फॉर्म में लिखते हैं आंसर को। तो चलो राइट डाउन, फाइनल आंसर, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ऐसा लिखो,
I'll just end up over here. ठीक है, यहाँ पे एंड कर देता हूँ मैं. चलो ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा. The polar coordinates are, r theta से लिखते हैं हम, तो r is 2 and theta is nothing but 60 degrees or pi by 3 radians. So let us write down pi by 3 radians. बस यही हमारा फाइनल आंसर है. पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए. प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. एग्जांपल नंबर 3. नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पी क्या दिया हुआ है, राइट डाउन, इट इज -1, -1. कंपेयरिंग करेंगे तो x का वैल्यू इज ऑल्सो -1 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो -1. तो व्हाट इज r? r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज +1. हियर ऑल्सो सेम. तो r का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इट इज √2. नाउ वी नो दैट tan थीटा इज y अपॉन x. तो y अपॉन x, तो -1 अपॉन -1 दैट इज नथिंग बट +1. अभी आप सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के कि tan 1 कब होता है. तो वी ऑल नो दैट tan π/4 इज 1. tan 45 डिग्री 1 होता है ना, तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है. नाउ अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ओवर हियर स्टूडेंट्स वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर एंड राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू π/4. देखो दोनों साइड पे tan फंक्शन होना नेसेसरी है एंड बोथ द साइड्स शुड बी पॉजिटिव, तभी हम थीटा लिख सकते हैं. तो मैं बोलोगे कि सर दोनों जगह पे tan भी है, दोनों पॉजिटिव भी है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 क्यों नहीं लिख सकते. So we cannot write down theta is equal to π/4 because you see P lies in which quadrant? -1, -1 ये जो point है students, this point lies nothing but in third quadrant. तो recollect third quadrant में, ठीक है ना, point जो है वो third quadrant में है क्योंकि x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. अभी थीटा फाइंड करने के लिए हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. व्हाट डज द फॉर्मूला सेज? tan of pi plus theta is equal to tan theta. ये फॉर्मूला यूज करना है. अब उसको कैसे यूज करना है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको स्टेप वाइज लिख के बताता हूँ. देखिए यहाँ पे, so now I'll just rub this off. तो मैं जरा हटा देता हूँ. गिव मी 1 मिनट. पहले जो फॉर्मूला यूज करने वाला वो मैं लिख रहा हूँ ओवर हियर. So we are going to use the formula tan of pi plus theta is equal to tan theta. ये फॉर्मूला यूज करके हमें थीटा मिलेगा. So now see how to use this. This tan theta, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, this will remain same. अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये tan theta इससे कंपेयर करो, तो ये जो एंगल है ना π/4 वो आपको यहाँ पे डालना है. तो ये जो एंगल π/4 आप यहाँ पे डालोगे ना, तो सी व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम tan ऑफ pi प्लस π/4 हो जाएगा. सी दिस, ये फॉर्मूला यूज किया है हमने, ये जो ब्लू में लिखा है ना, इसको यूज किया है हमने. tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ pi प्लस थीटा. तो ये थीटा π/4 है, तो π/4 यहाँ पे डाल दिया, तो tan ऑफ pi प्लस π/4 इज नथिंग बट इक्वल टू tan π/4 होता है. ऐसा यूज करना है. जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वो आएगा आगे जाके, डोंट वरी. नाउ व्हाट विल हैपन, देयरफॉर दिस tan थीटा विल रिमेन सेम. लेफ्ट हैंड साइड वाला ये tan थीटा सेम रहेगा. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, tan ऑफ pi प्लस π/4 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो pi प्लस π/4 का एलसीएम लेंगे तो इट इज नथिंग बट 5 π/4 रेडियंस आएगा. नाउ सी वी कैन कंपेयर वेरी इजीली. तो जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? तो थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 5 π/4 रेडियंस होता है. ठीक है. नाउ वी विल
हाउ विल यू टेस्ट वेदर दिस एंगल 5 पाई बाय 4 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट? कैसे मालूम पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में? तो रिकलेक्ट, वी हैव डन इट इन एंगल यूनिट्स मेजरमेंट. रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. तो चलो आपके रेफरेंस के लिए लेट अस कन्वर्ट दिस रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर ऑल्सो. राइट डाउन, आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हाट विल हैपन? 5 पाई बाय 4 रिमेनिंग सेम. अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 180 बाय पाई. अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस पाई पाई गेट्स कैंसल. नाउ कैरी आउट द सिंप्लीफिकेशन. हाउ मेनी टाइम्स? ये 4 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गेट कैंसल? तो ये 4 गया तो ये हो जाएगा 45. 45 इंटू 4 180 होता है. नाउ 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना होता है? 225 डिग्रीज. एंड एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स कि 225 डिग्रीज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. देखो यहाँ पे आई विल जस्ट ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू. क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है, हमने किया. देखो दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, this is 180 degrees, this is 270 degrees और ये होता है 360 degrees एक रोटेशन. तो 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. 90 to 180 it is second quadrant. 180 degrees to 270 degrees it is third quadrant. And 270 degrees to 360 degrees it is nothing but the fourth quadrant. तो देखो 225 degrees 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. देखो पॉइंट पी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये करेक्ट आंसर है. तो प्लीज याद रखना आप कि अगर आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिख दिया कंपेयरिंग से तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उस हिसाब से हमें एंगल मिलता है. ओके चलो, तो देन वी कंक्लूड. ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए डिग्री में कन्वर्ट किया, कंपल्सरी नहीं है. यू कैन कीप इट इन फॉर्म ऑफ रेडियन ऑल्सो. इनफैक्ट रेडियन में ही रखो आप उसको. पोलर कोऑर्डिनेट्स आर का वैल्यू है √2 and theta is nothing but 5 pi by 4 radians. Now the problem is over. चलो note down, लिख लो आप ये. Then we'll move on to the next example. Okay students, so now let's move on to the next fourth example. Px comma y क्या दिया है? -√3, 1. So x का value is x is -√3 and y is 1. अब देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. तो पॉइंट P lies in which quadrant? पॉइंट P lies in second quadrant. तो मीन्स एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा एंगल है. ठीक है. तो चलो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r. तो r का क्या फॉर्मूला है? √x² + y². so that is √x का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर इज 3 and 1 का स्क्वायर इज 1. तो ये √4 मतलब ये हो जाएगा 2. ठीक है. अभी tan थीटा इज y/x. तो y/x, pi by x means it is -1/√3 tan theta. Now let minus sign remain same. अभी आप सोचो या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो, whatever it is possible for you, कि tan 1/√3 कौन से एंगल पे होता है? 30 डिग्रीज, राइट? तो 30 डिग्रीज means it is nothing but pi/6 रेडियंस. अब देखो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स? द पॉइंट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखो. सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला है? tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है. ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है अभी. तो राइट डाउन. What how will this be written as? प्रोसीजर आपको बताया मैंने. ये pi/6 है ना,
ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम सिंपल है। ये π/6 आप यहाँ पे डाल दो ये फॉर्मूला में, बस ये हमें 4 ही फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है। तो व्हाट विल दिस बिकम, तो दिस विल बिकम tan ऑफ पाई माइनस π/6, देखो थीटा यहाँ पे डाल दिया, तो tan ऑफ पाई माइनस π/6 इज माइनस tan π/6 होता है। नाउ सिंप्लीफाई, तो tan फंक्शन सेम रहेगा, पाई माइनस π/6 को आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो इट विल गिव अस नथिंग बट 5π/6। नाउ सी वी कैन कंपेयर, दोनों साइड पे tan फंक्शन है, दोनों साइड्स पॉजिटिव है, तो व्हाट इज थीटा स्टूडेंट्स, तो थीटा इज नथिंग बट 5π/6 रेडियन। अगर आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली करेंगे अभी। π/6 रेडियन मीन्स 30 डिग्रीज, 30 into 5, 30 into 5 means this is 150 डिग्री। तो देखो 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड पॉइंट P लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हमें पहले ही मालूम था। व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, r का वैल्यू आ गया 2 एंड थीटा इज नथिंग बट 5π/6 रेडियन। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। r, थीटा फाइंड करना था, हो गया, नोट डाउन। देन विल डू द लास्ट एग्जाम्पल। ये स्टार मार्क किया है, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, नॉन टेक्सचुअल। देखो ऐसा आप माइंड में रखो मत, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि टेक्स्ट बुक के ही प्रॉब्लम्स आते हैं, देयर इज नो रूल एज सच, कहीं से भी आ सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है ना। पॉइंट चेंज हो गया तो दैट डजंट मीन्स कि उसका जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मूलेस तो वही है, फॉर्मेट देखो वही है, हर बार वही है, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इन दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टार मार्क किया। व्हाट इज द पॉइंट गिवन, 1/√2 कॉमा -1/√2। तो हियर x इज नथिंग बट 1/√2 एंड y का जो वैल्यू है दैट इज -1/√2। अब आप देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। P जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हर एक एक क्वाड्रेंट का एक एक प्रॉब्लम लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम r का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो r इज √(x² + y²), तो √1/√2 का स्क्वायर, तो इट इज 1/2, -1/2 का स्क्वायर भी 1/2 आएगा, सो द टोटल इज 1 एंड √1 इज 1 ओनली। अब tan थीटा इज y/x, तो y/x, तो दिस अपॉन दिस, so it is -1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगा। तो नाउ माइनस साइन रिमेनिंग सेम। अभी आपको सोचना है कि tan 1 कौन से एंगल पे होता है, तो इट इज एट 45 डिग्री और यू कैन से π/4 रेडियंस। नाउ सी वी कैनॉट कंपेयर बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो कंपेयरिंग नहीं कर सकते। अभी आप देखिए पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला है, tan ऑफ 2π माइनस थीटा इज -tan थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करना है। देखो पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड, वो रूल है, ठीक है। तो राइट डाउन tan ऑफ 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये π/4 आप यहाँ पे डाल दो, so what will this become, this will be written as tan of 2π minus π/4 हो जाएगा, as done in the earlier problem। देखो tan of 2π minus π/4 is -tan π/4 होता है। बस अभी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, तो 2π minus π/4 जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इट विल बी नथिंग बट 7π/4 हो जाएगा। 8π minus π 7π/4, तो थीटा का वैल्यू is nothing but 7π/4 radians. So what are the polar coordinates? So the polar coordinates are r का वैल्यू 1 है
and theta is nothing but 7 pi by 4 radians. With this, the problem gets over. So see how easily we have done the polar coordinates के problem, but उसके लिए हमने क्या यूज किया? एक तो r का जो फॉर्मूला है फाइंड करने का, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, and we have used tan theta का फॉर्मूला y by x, and this is the relation between the Cartesian coordinates and the polar coordinates. ये आगे जाके हमें 12th में भी लगने वाला है. Okay, so with this today we finish off with polar coordinate system के जो problems थे in exercise number 2.2 under trigonometry 1. Please note down, next time we meet we move on to the next part of the topic. Okay, thank you very much. Keep studying and keep watching my YouTube channel.